जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरु महाराज जी थोड़ा बहुत बहुत शुक्राना। गुरु महाराज जी मैनू आज्ञा दो कि मैं सत्संग शेयर कर सका। मैं तो ਉਹੀ बुलवाना जो तुसी बुलवाना चाहते हो गुरु महाराज जी। मेरे मुंहों निकलिया हर शब्द हर लफ्ज गुरु महाराज जी थोड़ी बड़ाई करे, थोड़ा शुक्राना करे, थोड़ी बड़ाई करे, थोड़ा शुक्राना करे। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਬਾਹ ਫੜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧੀ ਬਣਾਇਆ, ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਬਣਾਇਆ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸਾਡੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਦਰਬਾਰ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਪੂਰੇ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਵਰਡ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਪੁੱਤ। ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਉਹ ਨੇ ਵਿਦਮਾਨ ਨੇ। ਬਟ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੜ ਬੱਚੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਤਾਂ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਕੋਈ ਐਸੀਆਂ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਨਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੀਆਂ ਕਿ ਛੋਟਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਬੜਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਅਮੀਰ ਕੌਣ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਕੌਣ ਹੈ। ਬਸ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰ ਹੀ ਦੇਣਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਸ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੀ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਪਿਛਲੀ ਉੱਪਰਲੀ ਨਿਚਲੀ ਜੋ ਵੀ ਮਾਫੀ ਹੈਗੀ, ਛੋਟੀ ਬੜੀ ਮਾਫੀ ਉਹ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦੇ ਕਸ਼ਟ ਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੌਰੀ ਕਸ਼ਟ ਨਹੀਂ, ਸੌਰੀ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦੇ ਕਰਮ ਨੇ, ਬੁਰੇ ਕਰਮ ਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਜਾਂ ਇਸ ਜਨਮ ਦੇ ਪਾਪ ਜਾਂ ਬੁਰੇ ਕਰਮ ਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਭ ਦੀ ਮਾਫੀ ਦੇਣਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਹੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮਾਫੀ ਦੇਣਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਕੰਨ ਫੜ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੀ ਵੀ ਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਪਲੀਜ਼ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਸਾਰੇ ਗੁਨਾहों ਤੋਂ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਗੁਨਾहों ਤੋਂ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅਵਗੁਣ ਹੀ ਅਵਗੁਣ ਨੇ, ਬਟ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਅਵਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਗੁਣ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਸ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਰੂਪੀ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਟਰਸਟ ਦੀ ਉਹ ਬਣਾ ਕੇ, ਬੋਟ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਪਾਰ ਤੋਂ ਉਸ ਪਾਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ।
ਉਸ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹਲੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਲੇ ਕਨੈਕਟ ਹੋਣ ਦਾ ਹਲੇ ਹਿੱਸਾ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ਾਇਦ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਨੈਕਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜ ਜਾ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਔਰ ਸਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਇਆ ਮੈਨੂੰ, ਕਿਆ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਨਿਮਾਣੀ ਬੱਚੀ ਹਾਂ ਔਰ ਇੰਨੀ ਮੂੜ ਬੁੱਧੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਬਸ ਜੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਭਾਵ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਉਸੀ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਹਲੇ ਤੱਕ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਮੈਂ ਬੈਠਾ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਹੱਥ ਫੜੇ ਹੈ, ਤੂੰ ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਲ ਬਾਂਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਆਫਿਸ ਦਾ, ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਤਲਬ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਇਆ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਜਦ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੌਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਮੂੰਹੋਂ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੂੰਹੋਂ ਮੇਰੇ ਸ਼ਬਦ ਨਿਕਲਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ, ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਹਾਵ ਭਾਵ ਸੀਗੇ, ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਐਟੀਟਿਊਡ ਸੀਗਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ ਗੁਰੂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਸਭ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਉਹ ਖੇਲ ਸੀਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਸੀ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਤਾਂ ਖੇਲ ਨਿਰਾਲੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬਲੈਸਿੰਗਸ, ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਮਿਰੈਕਲ, ਨਾ ਖੇਲ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ। ਆਪਣੀ ਇੰਨੀ ਔਕਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੀ ਇੰਨੀ ਸਮਝ ਹੈ। ਔਰ ਸਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆਪਾਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਮੁੱਦੇ ਮੂੰਹ ਹੀ ਗਿਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦੋ ਬਸ, ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੌਂਪ ਸਕੀ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਲੀਜ਼, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੈਲਪ ਕਰੋ, ਪੂਰੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਫਾਲਤੂ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੇਰਾ ਹੈ ਨਾ ਸੰਗਤ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ 'ਚ ਹਲੇ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸੌਰੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋੜ ਸਕੋਗੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ। ਉਸ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਾਂ ਓਨਾ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਜਦ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਨਵਾਂ ਨਵਾਂ ਜੋੜਿਆ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਉਸ ਵਕਤ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਗੁਰੂ ਪਾਲ ਨੂੰ ਆਈ ਲਵ ਯੂ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਕਿਊਟ ਹੋ, ਇਹ ਹੈ ਉਹ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਉਸ ਵਕਤ ਮੈਂ ਹੱਸਦੀ ਸੀ ਇਹ ਸੋਚ ਸੋਚ ਕੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਹਿਚਕਿਚਾਹਟ ਲੱਗਦੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੀ ਬੋਲਦੀ ਸੀ। ਹਲੇ ਵੀ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹੀ ਬੋਲਦੀ ਹਾਂ, ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਹਿਚਕਿਚਾਹਟ ਹੈ ਨਾ ਗੁਰੂ ਬੋਲਣ ਦੀ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਲਈ ਅਨੰਤਮ ਪਿਆਰ ਭਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਸ ਪਿਆਰ ਤੇ ਉਸ ਟਰਸਟ ਦਾ ਬਸ ਵਾਸਤਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਈ ਰੱਖਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਦਾ ਦਾਨ ਦੇਣਾ, ਨਾਮ ਜਾਪ ਦਾ ਦਾਨ ਦੇਣਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਨਾਮ ਜਾਪ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦੇਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਜਾਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਜਾਪ ਦਾ ਆਪਣੀ ਦਾਤ ਦੇਣਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ, ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੈਸੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਅੱਗੇ। ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ 'ਚ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਉਹ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਹਰ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ ਔਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਿੱਤੇ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦਿੱਤੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਹਰ ਪਸ਼ੂ ਪਕਸ਼ੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਹਰ ਕਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਦਾ, ਨੀਚੇ ਵਾਲੇ ਦਾ, ਸਾਈਡ ਵਾਲੇ ਦਾ, ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲੇ ਦਾ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਬਾਹ ਫੜੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ।
और पूरी सृष्टि तो पूरे कण कण तो माफी मंगदी हाँ, हर पल पल तो माफी मंगदी हाँ गुरु महाराज जी तुहाडे तो, कि कोई भी साडे तो गलतियां हो सानू माफ कर देना गुरु महाराज जी, माफी देना। शुक्राना 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 अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी। गुरु महाराज जी वी लव यू लॉर्ड गुरु महाराज जी, तुसी साडी जान हो गुरु महाराज जी। हमेशा अपना प्यार ते ट्रस्ट जो साडे विच हैगा तुहाडे लई, उस दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की देना गुरु महाराज जी। लव यू लव यू लव यू लव यू गुरु महाराज जी, वी लव यू लॉर्ड। थोड़ी पूरी संगत ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਇਸ ਸਤਸੰਗ ਤੋਂ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀਏ, ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੋਏਗਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਫੇਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਲਵ ਯੂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣੋਗੇ। ਆਂਟੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ कि यह सत्संग शेयर करोगे। शुक्राना 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 शुक्राना, पूरी सृष्टि का भी शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आई लव यू, वी लव यू गुरु महाराज जी, वी लव यू लॉर्ड। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। ये शुक्राना सत्संग है, शाम का शनिवार है और 15 तारीख है मैं शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुजी सारी संगत को जय गुरुजी, गुरुजी को भी जय गुरुजी। गुरुपा मुझे क्षमा करना, आज मैं थोड़ा जल्दी कर रही हूँ, 8:27 हो रहे हैं, इसलिए मैं शुक्राना सत्संग कर दूँ। आज कोई है नहीं घर में, चुपचाप से जल्दी कर रही, नहीं तो कोई आ जाएगा ना शोर मचाने लग जाएगा। आज मैं क्या करूँ, मैं भूल गई। आज शनिवार था, मेरे को शनिदेव के दिया जलाना था, तो मैं शनिदेव के दिया जलाने गई। पहले तो मैं ढूंढती रही, दिया ही ख़त्म हो गए। एक मिला बड़ी मुश्किल से, भोड़ी गुरुपा से बोला ढूंढवा दो, गुरुपा याद दिला दो। फिर उन्होंने फिर मिल गया एक, मैं एक को लेके चली गई, ढूंढती रही, टाइम निकल गया। जो तो जलाई, मैंने बोला गुरुपा आके पूजा करूँगी, पहले मैं जो जलाया हूँ वहाँ पे। फिर वो गुरुपा आप तो जानते ही हो, दिमाग तो काम ही नहीं कर रहा, ना पैसे लेके गई ना कुछ लेके गई। वहाँ जाके मैंने जोत तो जला दी शनिदेव के, वो पास पड़ता है, पीपल पड़ता है बहुत दूर, इसलिए मेरे को जाने में आधा घंटा तो लगता ही है गुरुपा। तो मैं कह रही, मैं दिया लेने गई दुकान पर, तो वो मेरे पास पैसे नहीं। फिर मैं वापस आ गई, मैंने पैसे तो लाई नहीं। फिर मैं आई घर पे और फिर मैंने आटे का दिया बनाया, दिमाग काम ही नहीं करा मेरा। फिर मैं दोबारा दिया बना के फिर लेके गई पीपल पे, फिर वहाँ जला कर आई। गुरुपा क्षमा करना, शनिदेव को भी कर्मदाता न्याय के देवता से मैंने बोला, न्याय देवता आप न्याय करना। फिर मैं पीपल पे गई, पीपल बहुत दूर है, जाने में आधा घंटा लगा मेरे को। धीरे धीरे गई क्योंकि मुझे थोड़ा कम दिखता है, इसलिए एक आँख से तो बिल्कुल ही नहीं दिखता है गुरुपा। धीरे धीरे गई अकेले और धीरे धीरे आई, तो काफ़ी टाइम हो गया। मैं हनुमान चालीसा पढ़ी बैठ के वहाँ पे, और पीपल के नीचे बैठ के हनुमान चालीसा पढ़ के फिर मैं आती रही। तो मैंने चालीसा पढ़ते पढ़ते आई घर तक, 4 पढ़ ली, एक वहाँ पढ़ ली थी, 4 फिर पढ़ी रास्ते में। और अब मैंने घर में एक आधी और पढ़ लूँगी, घर में नहीं पढ़ी। अब मैंने पहला आरती उतार के गुरुपा से क्षमा मांग के, गुरुपा से बोल के गई थी कि घर में आप घर देखना, क्योंकि कोई है नहीं इसीलिए। और कई लड़के घूम रहे थे गली में, मैंने कहा कोई है नहीं गली में, तो मैं ताला लगा के गई। फिर मैं आई, अभी मैंने दूध मंगाया, दूध नहीं था, फिर दूध मंगाया मैंने डॉगी के लिए,
शनिवार था, मुझे याद आ गया क्योंकि मैं भुलक्कड़ बहुत हूँ, हर चीज़ भूल जाती, पैसे रख के भूल जाते हैं 1 मिनट में, 1 सेकंड में, एक सेकंड में तो मैं भूल जाती हूँ। गुरुपा मुझे कुछ याद ही नहीं रहता, मैं क्या करूँ, क्षमा करना। और संडे को कल सवेरे मेरे को खाटू श्याम जाना है, मेरी टिकट बुक करा रखी है किसी ने, तो मैं उसके साथ जाऊंगी, 1 महीने पहले की है। पर मेरा इरादा तो प्रयागराज जाने का था, लेकिन मेरा वहाँ से बन ही नहीं रहा। चलो कोई बात नहीं, मैं यहीं हो जाती हूँ। मेरे अकेले की टिकट बनाई है उन्होंने, तो पहले भी लेके गई थी एक बार, अब दोबारा ले जा रही हैं। चलो मैं लेके जाती हूँ। कृपा आप मेरी हेल्प कर देना, बस आप घर की देखभाल करना, क्योंकि आपको घर में ज़्यादा ज़रूरत है। एक बेटा अकेला रहेगा एक रात को, इसीलिए मैं गुरुपा को साथ नहीं ले जाऊंगी। आप गुरुपा बस बेटे के अंग संग रहना, मेरे को उसी का ज़्यादा रहता है, और कोई घर में है नहीं। छोटी वाली बेटी बड़ी बेटी के घर गई हुई है, तो मैं इसीलिए मेरे को उसकी ज़्यादा चिंता रहती है, इस बेटे की। गुरुजी, आज हमारी गली में किसी का बर्थडे था, उन्होंने कीर्तन कराया, सुबह को पूजा कर ली होगी, दोपहर को कीर्तन था, गीत थे, वहाँ बैठे रहे, फिर 3 बजे के फिर वहाँ पर भंडारा भी था। उन्होंने एक दिन पहले कह दिया था सब परिवार का खाना है। परिवार में कौन है, मैं ही अकेले, एक बेटा, बस 2 जने। फिर बेटा वहीं पे लगा रहा, भंडारे में हेल्प सेवा कराता रहा। तो फिर मैं आ गई शाम को, थोड़ी देर आई, मेरे ना के सर में इतना दर्द हो रहा था, छींकें आ रही थी, पूछो मत, मेरे से बैठा नहीं जा रहा था, फिर भी मैं बैठ गई, क्योंकि मोहल्ले की बात थी, इसीलिए जाना ज़रूरी था, इसीलिए गुरुपा में हो गई। शनिवार के जो उपाय थे गुरुपा, मैंने बड़ी मुश्किल से बेटे को मनाया कि मैंने कहा ये बांध ले लौंग वाला, कह रहा अच्छा बांध देना, कह रहा मैं नहा लूँ फिर बांध देना, तो नहा लिया, फिर मैंने बांधा उसको 7 लौंग, और वो मैंने कहा 1 हफ्ते के लिए बांध ले, 7 दिन के लिए, फिर मुझे दे दियो ये, कहने लगा अच्छा ठीक है। शुक्र है गुरुपा ने, मैंने गुरुपा से अरदास लगाई थी कि किसी तरह से मान जाए, क्योंकि मानता नहीं है वो, आग दिखाता है, पकड़ता है, इसलिए बस नॉर्मल हो जाए गुरुपा, सबसे बोले अच्छे खासे, अच्छे बोले हंस बोल के, मैं तो यही चाहती हूँ सबसे, और किसी से लड़ाई झगड़ा ना करे, घर में भी ना करे, बाहर भी ना करे, बस उसका गुस्सा शांत कर दो गुरुपा, बस किसी तरह से उसका गुस्सा शांत कर दो, बस उसके जो संकट है उसको दूर कर दो गुरुपा। मेरी यही आपसे अरदास है, और मैं कुछ नहीं मांगती हूँ, मैं धन दौलत नहीं मांगती हूँ गुरुपा, बस उसका काम धन खोल दो, जो बंधन है, बस वो अपनी मेहनत करके खाएं, बच्चे हमारे मेहनत करके खाएं, हम तो मेहनत वाले हैं गुरुपा, मेहनत वाले हैं, चाहे हमें आधी रोटी मिलेगी हम उसमें भी खुश हैं, वही खा लेंगे। बस आप बस अपना हाथ रखना बस हमारे सर पे, और कुछ नहीं, अपना साथ मत छोड़ना गुरुपा, बस आपका शुक्राना शुक्राना, बहुत शुक्राना गुरुपा। मैंने अब मंत्र जाप नहीं करा, सॉरी गुरुपा, मैं भूल गई, चलो मैं मंत्र जाप कर दूँ। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। क्षमा करना गुरु संगत जी, संगत परिवार, आप मुझे क्षमा करना, और गुरुपा आप भी मुझे क्षमा करना, मैं भूल गई थी, मैं गुरुपा की बेटी दिल्ली से, और मैं जल्दी जल्दी खुशी खुशी में मैंने कहा कोई आ नहीं जाए, इसलिए बताते बताते मैं भूल गई मंत्र जाप करना, सॉरी संगत जी, क्षमा करना, जो भी मेरा ही सुने, तो मुश्किल से मान तो गया है, पर वो अभी भी थोड़ा सा वो है, कोई भजन नहीं चलाने देता, कोई कुछ नहीं चलाने देता, खाली अपना एक फिल्म लगा के बैठ जाता है, मेरे को बस मैं अपने फ़ोन में जो सुनती हूँ वो सुनती हूँ बस, और कुछ नहीं।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा का, बहुत बहुत शुक्राना। हमारे को इस दलदल से निकाल दो गुरुपा। बस आप हमें रास्ता भी बताते हैं, आप बस रास्ता दिखाते रहो, अपने चरणों से लगा के रखना, हमें उपाय भी बताते हो। बस आसान वाला उपाय बताना गुरुपा, जो मैं अपने आप कर सकूँ, घर में कर सकूँ। क्योंकि बाहर जाती हूँ टोका टाकी बहुत लगाते हैं लोग, कहाँ जा रही है, क्यों जा रही, कहाँ जा रही, क्या करने गई थी। दिया भी जला कर आती हूँ तभी भी कोई ना कोई टोक ही देता है, इसलिए चुपचाप चुपचाप। क्षमा करना गुरुपा, बुराई कर रही हूँ, आप नहीं मना करा है इसलिए, मगर बताना तो पड़ता ही है गुरुपा, ऐसी कोई बात नहीं है। जय गुरु जी, ये मेरा आज का शनिवार का सत्संग है, मैं शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। और अब मैं शुक्राना सत्संग यहीं विराम करती हूँ, अगले सत्संग की तैयारी करूँगी। मुझे क्या कहना था मैं भूल जाती हूँ। गुरुपा ने मेरे को कहा था कि वो शमी का पेड़ लगाना, स्वामी का पौधा लगाना दरवाजे पे, और गुलाब का मैंने रखा था, लेकिन वो गाय आती है ना, वो उसने चबा डाला। फिर मैंने उसको उठा के ना सीढ़ी में रखना मेरी मजबूरी है गुरुपा, मैं दरवाजे पे नहीं रख सकती कुछ भी। तुलसी को भी मैंने ऊपर करके टांग के रखा हुआ है गुरुपा। मैंने तो आपसे बोला आपकी जिम्मेदारी है, लेकिन क्या करूँगी, बच्चा खा गया उसका, उसमें एक पत्ता भी नहीं है। आप ही उसको ब्लेस करें, हम उसको लग जाए बस, मैंने तो लेके लगा लिया। और बस पीपल का रह गया है और उसका आम का रह गया, वो मैं लगा लूँगी। आम का तो मुश्किल है मिलना, नर्सरी से पता करना पड़ेगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंतम शुक्राना शुक्राना गुरुपा। आप ये भी काम करवा दें, पीपल का भी लगवा दें, उस पर भी लोग टोका टाकी करेंगे, इसलिए मैं कह रही हूँ आप ही जो भी कुछ कराएं, आप हाथ पकड़ के मेरा जो भी काम करवाना है आप ही करवाएं गुरुपा, मैं आपसे विनती करती हूँ। बस जो भी काम करवाना आप ही देखें, आप ही करवाएंगे, हाथ पकड़ के जो भी कुछ कराना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना। अब मैं अपना सत्संग यहीं विराम करती हूँ और मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। चलो जय गुरु जी, शुक्राना 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 शुक्राना। माफ़ करना गुरुपा, संगत जी आप भी मुझे माफ़ करना, क्षमा करना गुरुपा, और सारी संगत जी भी, और जो शेयर करेगा उसे गुरुपा बहुत बहुत ब्लेस करें, बहुत बहुत अनंतम अनंतम ब्लेस करें, और सुनने वाले को भी ब्लेस करना, सारे संकट कटवा दो गुरुपा। जब से गुरुपा, चलो कल बाकी दूसरे सत्संग की तैयारी करती हूँ, अब मैं यहीं विराम कर रही हूँ। सॉरी, अगर कोई गलती होगी तो क्षमा करना। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, मैं सीमा आंटी दिल्ली से गुरपा की प्यारी बेटी संध्या मिले का शुक्राना कर रही हूँ। आज मेरा 9वां दिन है, आज शनिवार है, बजरंग बली का दिन है, आज 15 तारीख है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में लख लख शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज सुबह गुरुपा कहते हैं सुबह उठते ही गुरु संगत को ये बोलना चाहिए कि मेरा मन शक्तिशाली है और मैं खुश हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं निडर हूँ, मेरे सारे काम हो रहे हैं, मेरे सारे काम पहले से बेहतर हो रहे हैं। मुझे किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरा सहारा मेरे गुरुपा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा।
शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरी सारी बीमारियों को जड़ से ख़त्म कर दो। गुरुपा मुझे किसी डॉक्टर के पास नहीं जाना, ना ही कोई दवाई खानी है। गुरुपा आप ही मेरे डॉक्टर हैं, आप ही मेरे टीचर हैं, आप ही मेरे माँ बाप हैं, माँ पापा हैं, और आप भाई बहन बंधु सखा सारे रिश्ते आपसे ही हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कृपा मैं इस जन्म में पिछले जन्म के जो भी गलतियां हो, मुझे गुनाह हो, गलतियां हो, मुझे माफ़ करो, बख्शो, बख्शना बख्शो, मुझे माफ़ कर दो गुरुपा प्लीज़। गुरुपा आज तक आप जो भी दिया उसे हर चीज़ का दिल से शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आपने नहीं, आप गुरुपा उसका भी शुक्राना जो आपने दिया, और जो आपने नहीं दिया उसका भी शुक्राना शुक्राना। गुरुपा जब से आप हमारी ज़िंदगी में आए हैं, हमारे घर में कलह क्लेश ख़त्म हो गया है, थोड़ी सी खुशियाँ आने लगी हैं, और नेगेटिविटी ख़त्म हो गई है, पॉजिटिविटी आने लगी है गुरुपा। और मेरे कमरे में कुछ भी पड़ा हो नेगेटिव चीज़, आप उसे भस्म कर दो गुरुपा। और गुरुपा और सारी मेरी सफाई करवा दो गुरुपा। मेरे घर को एक मंदिर की तरह सजवा दो अपना हाथ पकड़ के, और कोने से कोनों कोनों में पॉजिटिव वाइब्स आने लगे गुरुपा। हाथ पकड़कर आप ही करवाएंगे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा मुझे बड़े मंदिर बहुत दिन हो गए आपने नहीं बुलाया है गुरुपा, और डुगरी भी मैं आना चाहती हूँ। प्लीज़ गुरुपा मेरे अंकल के मन में डालो, वो हमें लेकर आए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बेटी तूने बहुत सब्र किया है, और बहुत बातें सही हैं लोगों की, अब सब सही, लोगों की बातें सही हैं। अब वक्त आ गया है, कितनी भी मुश्किलें आई, तूने मुझसे अपना विश्वास नहीं हटाया है। मेरी परीक्षा में पास हो गई है, अब तू हर सुख पाएगी, तेरे दुख के दिन गए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तूने बहुत शुक्राना किया, दुख दे दिन अब गए, जा ऐश कर। बैठी क्या है, शुक्राना कर। हाँ, तुझे बहुत बड़ी खुशखबरी देने आ रहा हूँ। तेरा बहुत बड़ा काम पूरा होने वाला है। तुम हम्म, 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 तो होने वाला है। किसी को काम को होने से पहले मत बताया मत कर। आज तारीख नोट कर ले, और लिख कर देता हूँ कि तेरा कोई काम नहीं रुकने दूंगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। पुत्र तू क्या समझती है, तेरा और मेरा रिश्ता अभी कुछ ही दिनों का है? नहीं पुत्र, तेरा मेरा रिश्ता तो कई जन्मों का है। इस जन्म में तो तुझे साक्षात मिला हूँ मैं। इस जन्म में तुझे ब्लेस करना है, सारी खुशियाँ देनी है, इसीलिए मैंने तुझे अपनी शरण ਵਿੱਚ लिया है। ज़्यादा टेंशन ना मत लिया कर, तेरा मेरा रिश्ता कई जन्मों का है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा आप ही मेरे सारे रिश्ते हैं, जन्म से सारे रिश्ते मेरे आपसे ही हैं। मैं जन्मों से तरस रही हूँ, इस जन्म में मेरी आत्मा को उद्धार कर दो। गुरुपा भव सागर से पार लगा दो। गुरु जी मुझे मोक्ष की राह पर चलाओ, और मेरा भांडा साफ करो, मेरी आत्मा को शुद्ध करो। गुरुपा अपने चरणों में स्थान दो। गुरुपा मेरी गलतियों को माफ़ करो, जाने अनजाने जान मुझ करती हुई गलतियों को बख्शो, बख्शनहार माफ़ करो। गुरु मालिक, गुरु महाराज, हमसे कोई गलती हो गई हो तो हमें क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो। गुरुपा मेरे पितृ दोष, जो भी पितृ दोष है हमें उसे भी ये ठीक करो। गुरुपा मुझे बताओ मुझे क्या करना है, और कोई भी दोष, हर दोष से हमें दूर करो,
गुरुपा आपका लख लख शुक्राना जो आपने इस जन्म में मुझे ये चुना है और अपने साथ जोड़ा है, मुझे अपनी मुट्ठी पर संगत चुना है। आपका अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। गुरुपा मैं तो धन्य हो गई इस जन्म को पाकर। आपने जब से हमें चुना है हमारे जीवन में पॉजिटिविटी आ गई है। इस लायक हम इस लायक नहीं थे कि आपकी निमाणी बेटी पगली बेटी हूँ। आपने अपने साथ जोड़ के हम पर बहुत अ, इस जन्म में हमारा जन्म संवार दिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हाँ, और आपसे अरदास है कि अमृत वेले सेवा सिमरन भक्ति की दात बख्शो गुरुपा। मुझे अपनी शरण में ही रखना। गुरुपा कहते हैं बेटी तू टेंशन ना ले, तुझे वो सब कुछ दूंगा जो तुमने तेरी अर्जी कबूल हो गई है। मैंने देख तो जरा तमाशा बनाना चाहते हैं, जो तेरा तमाशा बनाना चाहते हैं अब मैं उनका तमाशा बनाता हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। पुत्र तेरा मन विच बिना वजह ही घबरा रही है। तेरी लाइफ में तो मैंने इतनी खुशियाँ लिखी हैं कि जितनी तूने सोची भी नहीं होंगी। अपने मन को शांत कर, अपने मन को शांत कर और मेरा शुक्राना किया कर। घबराया मत कर। तेरी ब्लेसिंग हमेशा, मेरी ब्लेसिंग हमेशा तेरे साथ है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। पुत्र मेरी संगत है, तू मेरी बेटी है, इतनी जल्दी हार कैसे मान सकती है। मैं जानता हूँ कि तू परेशान चल रही है। सब्र रख, विश्वास रख अपने गुरु जी पे। अब तेरे दिन बदलेंगे और लोगों के दिल भी बदलेंगे। सब फिर से चंगा हो जाना है। मैंने सब सही कर दिया है। शुक्राना 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 अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। शुक्राना करती रहे और तेरी सोई किस्मत भी जाग जाएगी। तू परीक्षा में पास हो गई है, तुझे हर सुख दूंगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे सबसे बड़ी खुशी, मेरा गर्व और मेरी संगत का अनमोल तोहफा है तुम। अनमोल हिस्सा है। आज का सबसे बड़ा सरप्राइज गिफ्ट गुरु जी का वादा शाम तक मिलेगा। खास तोहफा। मैं सदा तेरे साथ हूँ। तुझे हर पल अपने आशीर्वाद और अपने प्रेम से संवारता रहूँगा और अपनी छत्र छाया में रखूँगा। मेरी संगत में है और हमेशा रहेगी। गुरु जी कहते हैं अपनी दूरियां ही उनसे दूरियां ही अच्छी हैं जिन्होंने तुम्हारी नज़दीकियों की कदर नहीं करी रिश्तों ने। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा मेरे सारे रिश्ते तो आपसे ही हैं। जो कदर नहीं करता हम उनसे उनसे हम रिश्ता नहीं रखते हैं। जय गुरु जी। गुरु गुरु साथ संगत है, सबके घरों में खुशियाँ आए, ढेरों ब्लेसिंग दे दो गुरुपा सबको। सब स्वस्थ रहें, खुश रहें। अब मैं अगले सत्संग की तैयारी करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सभी संगत जी को जय गुरु जी। तो मैं गुरु मन से गुरुपा का शुक्राना सत्संग शुरू करती हूँ संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरुपा के सम्मुख बैठकर शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुपा से ये विनती है, गुरुपा वो ही बुलवाएं जो आप बुलवाना चाहते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। सब पे मेहर करना गुरुपा, सब पे मेहर करना।
सब पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। हम सारी संगतें बस आप ही के आस पे चलती हैं गुरुपा, सब कुछ आपको समर्पित करके ही चलती हैं। कृपया सब पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। तो हर सांस सांस का शुक्राना गुरुपा, हर दिन रात का शुक्राना गुरुपा, हर पल पल का शुक्राना गुरुपा। हमारे सभी बच्चों की तरफ से आपको शुक्राना गुरुपा, हमारे अंकल जी की तरफ से शुक्राना, पूरी परिवार की तरफ से, मेरे मायके के परिवार की तरफ से भी आपका शुक्राना गुरुपा। संगत जी, गुरुपा की कृपा मेहर बहुत बरस रही है। कल संगत, आज तो 6 तारीख है संगत जी, कल 7 तारीख है। कल गुरुपा का सत्संग यहाँ पे एक आंटी जी के यहाँ होता है। मैंने जाने को सोचा है कि मैं जाऊंगी जरूर, पर गुरुपा आप अगर बुलाएं तभी मैं पहुंच पाऊंगी। आप जब तक नहीं जाने के लिए कहोगे, मैं कितना भी कोशिश कर लूँ मैं नहीं जा पाऊंगी। इसलिए गुरुपा आपसे बारंबार विनती है, कृपया मुझे सत्संग में ले चले। संगत जी, गुरुपा की मेहर बहुत है, इनकी मेहर अनगिनत है। अगर मैं जिस दिन बाहर निकलती हूँ, मैं उस दिन गुरुपा को पल पल देखती हूँ, समझती हूँ। घर पर भी रहती हूँ तो महसूस होता है, लेकिन फिर भी मन में ये शंका हो जाती है, क्यों मुझे ऐसा लग रहा है, शायद ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे खुशबू का अनुभव बारंबार इधर हो रहा था, पर मुझे ये लग रहा था कि शायद मेरा वहम है। और ऐसे सोच के, क्योंकि एक पल आ रही थी खुशबू, एक पल नहीं आ रही थी, तो मैं यही सोच पड़ी। पर कल मैंने सत्संग भी सुना संगत जी, गुरुपा ने एक सत्संग सुनवाया कि एक औरत है जो तेरा घर बर्बाद कर रही है, उसके उसके बारे में मैं खुल के बताता हूँ, तो इसको सुन। तो अपना घर बचाना चाहती है। तो मैंने उस सत्संग को सुना। तो उस सत्संग में संगत जी, वो उस सत्संग में जेठानी के बारे में था कि नहीं, हाँ हाँ यही था कि वो अंकल जी अपने भाभी के इशारों पे नाचते थे, उन्होंने उसके ऊपर कुछ ब्लैक मैजिक किया था। लेकिन गुरुपा हर सत्संग में हमें ये बताते हैं कि अगर हम गुरुपा से जुड़ चुके हैं तो कोई ब्लैक मैजिक वगैरह हमारा कुछ नहीं कर सकती। तो गुरुपा पे आस्था रखें, और गुरुपा कुछ भी नहीं बिगड़ने देंगे, कुछ भी नहीं बुरा होने देंगे। संगत जी, मेरे अंकल जी का व्यवहार अब परिवर्तन हो रहा है, मुझे सब समझ आता है। गुरुपा कहते हैं कि मैं उसके मन बदल रहा हूँ, उसे सही रास्ते पे ला रहा हूँ। वो पहले चिड़चिड़ बहुत करते थे संगत जी, छोटी छोटी बात का मतलब नुक्स निकाल के मुझसे बस बात में, जो बात में झगड़ा भी नहीं हो सकता उस बात में भी झगड़ जाते थे। मैं सोच में पड़ जाती, ये कौन सी बात पे झगड़े हैं। अगर मैं किसी को बताऊं तो वो भी बोलेगा कि ये तो कोई झगड़ा ही नहीं है, फिर वो क्यों लड़ता है तुमसे। तो ये संगत जी, ऐसी ऐसी बातें होती थी, गुरुपा ने सब दूर किए। अब वो बिल्कुल धीरे धीरे शांत होते जा रहे। गुरुपा आपको लख लख शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। और बच्चे संगत जी, मेरी बेटी भी वैसे ही चिड़चिड़ करती थी। कितने सारे उपाय गुरुपा ने बताए थे, मैं तो कुछ भी नहीं कर पाती, पर गुरुपा से ये विनती ही करती हूँ कि सारे कष्ट आप खुद ही हर लो गुरुपा। मैं कुछ करने लायक नहीं हूँ, कहाँ जाऊँ क्या लाऊं, कुछ बाहर तो बिल्कुल भी नहीं निकलती हूँ। लेकिन गुरुपा कहते हैं कि तू खुद से भी कुछ किया कर। मैं घर का ही काम करती हूँ, बस घर ही में रहती हूँ, लेकिन मेरे अंकल जी सब कुछ ला देते हैं जो बोलती हूँ सो। पर मैं चढ़ावा चढ़ाने के लिए मंदिर भी काफ़ी दूर है, मैं जाती वगैरह हूँ नहीं, फिर इसीलिए मैं सोचती हूँ जो जो मैं कर सकती हूँ बस वो ही करती हूँ। अपने पाठ जो नित्य नेम गुरुपा बता रखे हैं, जितना कर सकती हूँ उतना करती हूँ, जैसा मन करता वैसा करती हूँ। वैसे गुरुपा कहते हैं कि तू, एक सत्संग में मुझे सुन या मैसेज था, तो जो भी करती है सही करती है खुद से ही, मतलब गुरुपा के, मैं जिस तरह नियम बताए जाते हैं मैं उस तरह कुछ नहीं कर पाती, जैसे समझ आता है वैसे कुछ चढ़ा लेती हूँ, जो भी करना रहता कर लेती हूँ। तो पाठ जब होता है, देखती हूँ समय जब मिल जाता है तब कर लेती हूँ। तो गुरुपा सब समझते हैं, वो अपने बच्चों का मन का भाव देखते हैं संगत जी।
उन्होंने कोई कठोर नियम नहीं बना रखा है, बल्कि वो भाव कहते हैं ईश्वर भाव के भूखे होते हैं। तो संगत जी वो भाव भाव ही देखते हैं। और कल रात्रि में संगत जी मैं बैठी थी, सब काम वाम हाँ काम तो झट ही हो गया था। गुरुपा की मेहर इतनी थी कि संगत जी मेरे अंकल जी कल शाम को मैंने खाना बनाया था, लेकिन मैंने थोड़े सब्जी नहीं बनाए थे और मैंने सोचा कि मेरे अंकल जी आते हैं 9 बजे तक आते हैं, तो मैं 8 सवा 8 तक उठूंगी और झट से बना दूंगी, गरम गरम भी रहेंगे। और ऐसा हुआ संगत जी कि वो 8 8 बज के कुछ ही मिनट हुए थे और उन्होंने कॉल कर दिया कि मैं आ चुका हूँ थोड़ा दूर तक, और फिर बेटे को भेज दो पानी भरवाने के लिए। मैं उसे भेज तो दी, पर मैं घबरा गई क्योंकि मैं उस समय शिव पुराण का पाठ कर रही थी। मैंने जल्दी जल्दी पाठ खत्म किया। गुरुपा को कही भी कि गुरुपा माफ़ करना, आज मैं बहुत हड़बड़ में करी हूँ, कृपया कबूल करना मेरे पाठ को। और मैं झट से गई, बहुत जल्दी जल्दी में सब्जी काटी बनाई, और बिल्कुल वो घर तक आते आते मेरी सब्जी लगभग तैयार ही, जब कपड़े उपड़े चेंज किए तब तक मैं बना ही दी थी, और वो खाने भी फिर बैठ गए। तो मैंने समझा कि ये गुरुपा की मेहर है, मेरे से इतनी जल्दी कहाँ होती संगत जी, ये गुरुपा ही करवाते हैं। हर दिन लेट होता है, जब मैं गुरुपा को बोल के जाती हूँ गुरुपा कृपया करके देख लेना, करवा देना, तो उस दिन जल्दी हो जाता है संगत जी। आज भी मैं मॉर्निंग में 6:30 बजे उठी हूँ। पहले तो रात में बोल के सोई थी कि गुरुपा मॉर्निंग में उठा लेना, कितना तो मुझे अ, अमृत वेला करना है। तो गुरुपा ने 2 बज के कुछ मिनट पे उठाए थे संगत जी, तो मैं सो गई थी कि 2 बज के कुछ मिनट हुए हैं, तो मैं सो जाती हूँ, 3 बजे उठूंगी। और ऐसा हुआ कि पौने 4, हाँ, या कुछ ऐसे ही हो रहा था कि मैं जागी, फिर मैं फ्रेश हुई आई और मैंने अपना पाठ संपन्न किया। और उसके बाद मैंने गुरुपा से हाँ संगत जी, फिर मुझे हल्का सा नींद आ गया, फिर मैं सो गई और नींद खुली भी तो 6:30 बज चले थे। अब मैं घबरा गई, 7:30 सबको जाना है, पहले मैं गुरुपा से बोल देती हूँ। मैंने उन्हें आके बोला गुरुपा कृपया करके देख लेना, जल्दी जल्दी करवा देना, सब कुछ बन जाए, कट जाए, सब बच्चे सब टाइम पे अपने पहुँच जाए। देखिए संगत जी गुरुपा ने सब सुना, और इतनी जल्दी सब्जी वगैरह सब कुछ बन गई। मैंने सबके लंच पैक के सबको दिए, और दोनों बच्चों को, अपने अंकल जी को, और तीनों निकल गए। फिर उसके बाद मेरे अंकल जी पहुंच के बोल रहे हैं फ़ोन करके, आज तो मैं टाइम पे पहुंचा है। मैं हंसी, और मुझे गुरु जी का ध्यान आया कि गुरुपा आपका लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। मैं तो सोची थी आज भी लेट हो जाएंगे। तो गुरुपा की मेहर बहुत बरसती है संगत जी। और गुरुपा कहते हैं कि ऐसे ही हाथ में कुछ चंदन वंदन ना हो, वैसे ही मतलब ओम का आकार बना दिया करो। तो मैं वैसे तो तकिया वकिया सब में बोले थे बनाने के, मैं तो कुछ भी नहीं बनाती हूँ, लेकिन मैं अपने अंकल जी को बोलती हूँ कि आप जब भी निकलो तो अपनी गाड़ी के ऊपर ओम जैसे लिखा था वैसे हाथ चला लो, उसके बाद बाइक को शुरू स्टार्ट करो, ताकि गुरुपा की मेहर बनी रहे। और वैसे वो लॉकेट स्वरूप लेके ही चलते हैं संगत जी। गुरुपा की मेहर तो खैर बनी ही रहती है। गुरुपा बहुत ख्याल रखते हैं संगत जी, बहुत ख्याल, बहुत बच्चों पे, अंकल जी पे, मेरे पे, मतलब सभी पे बहुत ख्याल रखते हैं। हम सारी संगतों पे गुरुपा की मेहर बरसती ही रहती है। गुरुपा कहते हैं केवल मुझे ध्यान किया कर, मुझे याद किया कर। जिसकी यादों में गुरुपा बसते हैं, उसकी उस पे गुरुपा की मेहर बहुत होती है, संगत जी बहुत होती है। तो संगत जी एक बात और मैं बोलने वाली थी, कल रात में फिर मैंने जब वो मतलब खाना वगैरह खा के जब हम बेड पे बैठे हैं, तो मेरे फ़ोन तो खैर चार्जिंग पे थे, तो मैं अपना फ़ोन नहीं चला रही थी क्योंकि वो चार्जिंग नहीं ले रहा था। मैंने हाँ संगत जी, मैंने ना चार्जर को अपने एक बार क्या किया कि पानी से थोड़ा सा नीचे से हल्का सा सटा गीला करके उसके बाद मैंने लगाया। चार्जिंग लग तो जा रही थी, लेकिन वो ले बहुत धीमी रहती, क्योंकि गुरु जी का जब जल प्रसाद उसमें लगा के लगाती थी तो चार्जिंग लेती थी। तो मैं सोची कि चलो क्या जल प्रसाद लूँ, इसी से लगाती हूँ। तो चार्जिंग बहुत धीरे ले रही थी। फिर मुझे ख्याल आया कि गुरु जी का जल प्रसाद और ये जल में बहुत डिफरेंसेस है।
फिर मैंने 1 चम्मच में थोड़ा-सा जल प्रसाद लाया, फिर उसको लगाई और उसके बाद मैंने मंत्र जाप किया और गुरुजी से विनती की, गुरुपा कृपया करके मेरे फ़ोन को चार्ज कर दो, नहीं तो मैं कैसे सत्संग सुनूँगी, कैसे क्या करूँगी। और संगत जी वो चार्जिंग अच्छी तरह से लेने लगा। फिर मैंने मन ही मन जय गुरुजी कहा और फिर मैं जैसे बेड पे बैठी और मैंने अंकल जी को बोला कि अंकल जी मेरे खुद ही बोले कि लो तुम्हारा फ़ोन तो चार्जिंग पे है, ले और लो तुम मेरा फ़ोन चला लो। और मैंने फ़ोन जैसे स्टार्ट किया वैसे एक सत्संग आई थी शायद, उसे मैंने सुना कि नहीं सुना, नहीं सुना संगत जी, उसमें थी तुझे हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत भी पड़ सकती है, इस सत्संग को सुन, हाँ सारे कष्ट कट जाएंगे। मैंने उसे नहीं सुना संगत जी, वैसे तो मेरे मसूड़े में बहुत दर्द हो रहा है, अब गुरु पा ही इसका निवारण करेंगे। मैं तो वैसे कहीं नहीं जाती और आंखें काफ़ी धुंधली हो चुकी हैं क्योंकि फ़ोन पे भी कुछ धुंधला धुंधला सा दिखता है। मैं पाठ करती हूँ, बहुत मुश्किल से करती हूँ, गुरुपा कृपया मेहर करे अपनी बेटी पे और आंखों की रोशनी बख्शे। तो संगत जी ताकि मैं पाठ वगैरह कर सकूँ, जब तक घर में सुख शांति ना हो गुरुपा में मन कैसे लगेगा संगत जी। तो गुरुपा जब तक सुख शांति नहीं देंगे, हर बीमारी को नहीं हर लेंगे, हम उनसे जुड़ते जुड़ते भी ना जुड़ पाते हैं। तो गुरुपा सब पे अपनी मेहर करना, सब पे अपनी कृपा करना। शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। तो संगत जी हम लेके बैठे तो उसमें एक वीडियो आ रहा था जो दिल्ली का था। उस आंटी जी के घर में गुरुपा की सेहत वर्षा हो रही थी और उसमें इलायची वर्षा और गुरुपा के स्वरूप की भी वर्षा हो रही थी, लॉकेट स्वरूप वगैरह निकल रही थी। मैं तो देख के इतनी खुश हुई कि गुरुपा की मेहर इतनी बड़ी। और कहते हैं कि उनकी छतें कमज़ोर थी, वो डर रही थी कि मेरे छोटे से घर में इतने सारे संगत वगैरह आ रहे कि मेरी छत ना गिर जाए, छत पे शायद होंगे गुरुपा का स्वरूप। तो गुरुदेव पता नहीं मैं इतना ध्यान नहीं दे पाई। तो कहते गुरुपा के हाथ निकले ना क्या और वो हाथ लगा के उस छत को बोली कि अब मुझे विश्वास हो गया कि अब कुछ नहीं होगा। तो गुरुपा आपका लख लख शुक्राना, गुरुपा कोटि कोटि शुक्राना कि वो वीडियो आपने मेरे सामने लाए। मैं ये देख के इतनी खुश हुई संगत जी, इतनी खुश कि क्या मेहर है गुरुपा की। हम बच्चे तो इतना नहीं जानते, कोई कितने सालों से कर रहा है, गुरुपा ने उनको साक्षात दर्शन कहती है कि उसमें बहुत कुछ बताया गया कि उन्होंने ब्रेड पकौड़ा तब चढ़ाया तो भोग लगाया तो वो भी जिस तरह कोई खाता है तो टूट जाता वैसे वैसे हुआ था। बहुत कुछ बता रही थी आंटी जी, मुझे सुन के इतना खुशी हुआ कि गुरुपा साक्षात दर्शन दे रहे हैं। अहो भाग्य उनके जिन्होंने जा जा के दर्शन किए हों। लख लख शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा, ये सारी बातें हमारे सामने लाने के लिए कोटि कोटि शुक्राना। लख लख शुक्राना दर्शन करवाने के लिए कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी गुरुपा जो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हम उन्हें बताते हैं तो वो उतना ध्यान नहीं देते, जैसे कि जो संगत नहीं है। हमारी माता जी हैं जो अपना मतलब जैसे कि मैंने मंत्र बताया तो वो मंत्र जहाँ बोलती मैं दिन रात करती हूँ, लेकिन मुझे जुड़ाव नहीं समझ आता संगत जी, क्योंकि जब मैं उनको गुरु जी की बातें करते रहती हूँ तो वो परेशान ही रहती है, कभी बच्चे में कभी कुछ में। तो मुझे समझ आता है इस बात का कि अभी गुरुपा ने उन्हें शायद अच्छी तरह से जोड़ा है कि नहीं जोड़ा, वो गुरुपा ही जाने। लेकिन वो काफ़ी परेशान रहती हैं और सुन नहीं पाती है, सुनती है तो खुश होती है वैसे, लेकिन उतना जुड़ाव मुझे किसी का नहीं दिखता। तो ये हम संगतें ही खुश होके सुनती हैं, जो भी हम संगत हैं। तो गुरु पाप का लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, क्योंकि उन्हें ही अनुभव होता है कि गुरु पाप हमें क्या दे रहे हैं और किस तरह ब्लेस कर रहे हैं। इधर मुझे 3 3 3 3 ऐसे नंबर दिख रहे थे। मैं सोच रही ऐसा क्यों हो रहा, 55 फिर 4 4 4 ऐसे। तो कृपा मुझे एंजल नंबर का पता नहीं होता तो मैं उसे सर्च करके देखती हूँ कि क्या है। उस दिन में गुरुपा ने नए बदलाव लाने के बारे में बताए हैं। तो लख लख शुक्राना गुरुपा, अब जो बदलाव लाना है गुरुपा ही लाएंगे। तो संगत जी और एक बात बताने वाली थी संगत जी। मैं एक दिन
2-3 दिन, हाँ, कुछ समय पहले मैं गई थी हॉस्पिटल, जो मैंने सत्संग भी शेयर किया है कि मैं अपने सासू माँ की आँखें बन रही थी, तो वहाँ मैं गई थी। तो वहाँ पे एक अंकल जी थे, काफ़ी मोटे से थे, और फिर वो हम जहाँ बैठे थे, जो बैठने का जगह रहता है वहाँ पे बैठे थे, वहाँ बगल में आए बैठे, और मुझे एक पल के लिए लगा कि गुरुजी हैं, लेकिन वो सामने से थे, फिर भी मुझे एक पल पता नहीं क्यों मन में ये विचार आया, मैंने मन में ही जय गुरुजी कह दिया, और फिर जाके जब वो मेरे बगल में आकर बैठ गया, और वो दोनों उंगलियां को इस तरह घुमा रहे थे जैसे गुरुजी को मैंने देखा है किसी पुराने सत्संग का वीडियो में, वो उंगलियां वैसे ही घुमा रहे थे और बैठे थे। मैंने जय गुरुजी कहा। अब ये गुरुपा ही जाने, जो भी हो, मुझे मुझे गुरुपा का अनुभव हुआ, तो मैंने कहा जय गुरुजी, आप जो भी हो, पर मुझे ऐसा लगा कि मेरे गुरुदेव आके बैठे हैं, तो मैंने जय किया मन ही मन, और फिर मैं भी बैठी रही, और मैं राम की धुन बजा रखी थी, वो ऐसा लग रहा था कि वो भी सुन रहे थे। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, मुझसे कोई गलती हुई संगत जी, अगर शुक्राने में तो मुझे क्षमा करें, और गुरुपा का ये शायद आदेश है कि हम कि शुक्राना हर पल किया करते शुक्राने से। हाँ संगत जी, गुरुपा कहते हैं कि संगत जी मैसेजेस भी आ रहे थे कि ये दिन तेरे सारे दुख और कष्ट खत्म हो गए हैं, अच्छे दिन आ गए हैं, सो शुक्राना कर। हाँ, तेरे सारी बीमारी मैं ख़त्म कर रहा हूँ, सॉरी संगत जी, तो सारी बीमारी ख़त्म कर रहा हूँ अब जड़ से, अब तू शुक्राना कर। तो संगत जी मैंने शुक्राना किया, कृपा कबूल करें कृपया। संगत जी कृपा मेहर बहुत करते हैं, और अपने बच्चों का ख्याल तो वो बहुत रखते हैं। मैं जब से जुड़ी हूँ संगत जी, मुझे ये अनुभव है, मेरे मन को इतनी शांति मिली है, ऐसा लगता मन में सुख का अनुभव होने लगा। कभी ऐसा नहीं लगता था, हर बार विचार गलत सही दिमाग में चलते ही रहते थे। अब कुछ नहीं चलते, अब चलते भी है तो गुरुपा कहते मेरा मंत्र जाप कर लिया कर, सब ठीक हो जाएगा। तो गुरुपा आपका लख लख शुक्राना। अब गुरुपा कहते मेरे दर पे आया कर, तो अपने अंदर जो भी है अहंकार वगैरह सब बाहर छोड़ के जुत्ती, हाँ कहते बाहर छोड़ के आया कर, यहाँ पे मैं बैठा हूँ, मैं जो करता हूँ वही होता है। ऐसे ही मैसेजेस है संगत जी, मैं थोड़ा भूल जाती हूँ, तो मुझे थोड़ा मतलब वो ही निकलता है, और मैं बोलने में थोड़ा सा रह जाती हूँ, तो कृपा क्षमा करें कुछ गलत बातें निकली तो संगत जी अब मैं अपना सत्संग को यहीं रोकती हूँ, और अगले सत्संग में फिर लौटूंगी। अब मैं गुरु मंत्र का जाप करती हूँ, आप सब भी साथ में कहें। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी, हर सांस सांस का शुक्राना गुरुजी, हर पल पल का शुक्राना गुरुजी, हर दिन रात का शुक्राना गुरुजी। और संगत जी मैं जो भी शुक्राना करना भूल जाती हूँ गुरुपा, मैं आपसे ये विनती करूँ, सबका शुक्राना गुरुपा, सबका शुक्राना। इसी शुक्राना सत्संग के साथ आज के सत्संग को विराम देते हैं। गुरु जी महाराज सब पर कृपा बनाए रखें, सबको खुशी और अच्छी सेहत बख्शना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।